So in this lecture, we are going to start logarithm. Okay, so actually logarithm is very important topic for IIT JEE. At least one question is fixed from this topic every year. Okay, so here I am going to discuss first what is the basic meaning of logarithm. Okay, so actually logarithm is divided into two parts. First part is log, and second part is arithmetic. Okay, this arithmetic. So what is the meaning of log? Actually log means rule. Log means rule. Okay, and what is the meaning of arithmetic? Arithmetic means arithmetics. Arithmetics. Okay, arithmetics, which is related to mathematical calculations. Okay, now the question is that why we need to study logarithm? Okay, so it's very simple reason. Actually it gives us the rule to solve the mathematical problems, that it simplifies mathematical calculations. Okay, so it's very simple. Okay, now I am going to explain with example. I am taking here some examples here. If I will ask you what is the cube root of 512, cube root of 512, then you can say easily 8. Okay, again if I will ask you 729, what is the cube root of this 729? So you can say 9. Okay, in the same way, if I will ask you what is the cube root of 1331, so you can say 11. Okay, now I'm asking what is the fourth root of 16, so you can say 2. It's very easy. In the same way, 16 raised to the power 1 by 2, okay, it means a square root of 16, so you can say plus 4. Okay, if I will ask you 2 raised to the power 1 by 2, then you can say root, this one is actually root 2. And what is the value of root 2? 1.414. Okay, in the same way, if I'm asking 9 raised to the power 1 by 3, means cube root of 9, then you can't say this answer. Okay, in the same way, if I'm asking here 57 raised to the power 1 by 7, okay, so you can't say answer of this question. Okay, in the same way, if I'm asking suppose 10 raised to the power 1 by 99, what is the answer of this question? So you can't say easily. Okay, so for this type of calculations we are studying logarithm, we study logarithm. Okay, so I hope you are getting this. Actually कहने का मतलब ये है कि कैलकुलेशन को इजी बनाया जाता है लोगरिथम, ठीक है ना। क्या होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जो कि सॉल्व करना मुश्किल हो, तो लॉग का यूज करके हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू, ठीक है ना। जैसे 512 रेस्ट टू द पावर 1 by 3, 1331 रेस्ट टू द पावर 1 by 3, इसका आंसर तो हमें पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 9 रेस्ट टू द पावर 1 by 3 मींस क्यूब रूट ऑफ 9, तो आप आंसर आसानी से नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। 57 रेस्ट टू द पावर 1 by 3 कितना लेंदी कैलकुलेशन है। तो इस टाइप का कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लॉग जैसे लेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज तो पता चल गया कि लॉग लॉग का मतलब क्या होता है। लॉग लॉगरिथम जो होता है वो दो भाग में डिवाइड है। लॉग का मतलब होता है रूल, अरिथम का मतलब होता है कि अर्थमेटिक्स, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से क्या हो, रिलेटेड हो। और लॉग क्यों पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि अगर कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो, ठीक है, तो उसको उसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग की हेल्प से उसको आसानी से सॉल्व करें। हमारे पास एक ये शानदार टूल है, ठीक है ना। और एक और चीज ध्यान में रखना है कि मीन्स मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स है हमारा, उसमें लॉग का इस्तेमाल जरूर होगा, ठीक है ना। तो इस चीज, ये बेसिक टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। और इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है हर साल, ठीक है ना। आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं कि लॉगरिथम होता क्या है, इसका डेफिनेशन की तरफ। लॉगरिथम क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट इज लॉगरिथम। व्हाट इज लॉगरिथम, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। एक्चुअली log a टू द बेस b, इसको कैसे रीड करते हैं। दिस इज रीड एज log a टू द बेस b, ठीक है ना। इसको कैसे रीड करते हैं, log a टू द बेस b। ये चीज आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले।
इसको रीड कैसे करते हैं, लॉग ए, ये जो गिवन है इसको कैसे करते हैं, लॉग ए टू द बेस बी एंड इज ए नंबर, ओके, व्हेन raised on b, okay, will produce a, will produce a। इसका मतलब मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। also a b is greater than 0 and a and b is not equal to 1, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये कंडीशन है इसका, मैं ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ इस पे, ठीक है, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि जैसे log a टू द बेस, इसको कैसे पढ़ते हैं, log a टू द बेस b। ये जो a है इसको क्या बोलते हैं, इस a को बोलते हैं हम लोग, इस a को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं नंबर, और यू कैन से आर्गुमेंट। आप आर्गुमेंट भी बोल सकते हो या आप इसको आर्गुमेंट नंबर बोल सकते हो, ठीक है ना। ये जो बी है ये क्या आता है यहाँ पे, बेस होता है, इसको बोलते हैं बेस, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। अब डेफिनेशन पे चलते हैं, डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि इसको रीड कैसे करते हैं, लॉग ए टू द बेस बी, ठीक है ना। ए क्या होता है यहाँ पे, नंबर होता है, या आप उसको आर्गुमेंट बोल सकते हैं, बी क्या होता है यहाँ पे, बेस होता है। अब डेफिनेशन क्या बोला, एंड इज ए नंबर व्हेन राइज्ड ऑन बी, ठीक है ना, राइज्ड ऑन बी, व्हेन राइज्ड ऑन बी विल प्रोड्यूस ए। तो ए आपको देता है, तो कैसे, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू k, राइट साइड में मैं एक k कोई भी एक वेरिएबल कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको b a इज इक्वल्स टू b रेस्ट टू द पावर k, ठीक है ना, a इज इक्वल्स टू b रेस्ट टू द पावर k। क्या बोला, इज ए नंबर व्हेन रेज्ड ऑन b, ठीक है ना, b के पावर में अगर ये आ जाएगा, विल प्रोड्यूस ये, तो क्या मिलेगा हमें, a मिल जाएगा, ठीक है ना। यही तो हमें, यही चीज आपको ध्यान में रखना है, यही तो हमें चाहिए, a इज इक्वल्स टू b रेस्ट टू द पावर k, ठीक है ना। आई होप ये चीज यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू k, सो वी कैन से नंबर और आर्गुमेंट इक्वल्स टू बेस रेस्ट टू द पावर RHS। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक कुछ बेसिक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे जैसे कि ये के, ये ए क्या है यहाँ पे, आपको तो पता ही है कि ए क्या है, आर्गुमेंट या नंबर है, ठीक है ना। के क्या है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। के यहाँ पे है, आप बोल सकते हो इंडेक्स, या आप इसको बोल सकते हो डिग्री, या आप इसको पावर बोल दीजिए, एक्सपोनेंट बोल दीजिए, पावर या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ठीक है ना। ये के क्या यहाँ पे, कुछ लोग पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो देखिए बी के यहाँ पे, बी जो है वो क्या है, बेस है, यहाँ पे क्या है, बी बेस है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब मैं इसको, आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैं उसका ट्रिक्स बता देता हूँ। ये जो क्या है हमारा, ए क्या है यहाँ पे, आर्गुमेंट है, नंबर या यू कैन से आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, और यू कैन से नंबर ऑल्सो, ठीक है। ये क्या है हमारा, नंबर है या आर्गुमेंट है। ये बी क्या है यहाँ पे, बेस है, बी जो है बेस है। और ये के क्या है यहाँ पे, के जो है RHS में था ना पहले से, ये देखिए ना यहाँ पे, ये क्या है RHS में था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ RHS, ठीक है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है फाइनली, ठीक है ना। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको फाइनल जो फॉर्मूला रखना है, याद क्या रखना है, नंबर और आर्गुमेंट इज इक्वल्स टू बेस रेस्ट टू द पावर RHS। ये फार्मूला का हम लोग बहुत ही यूज करने वाले हैं, बहुत यूजफुल फार्मूला है, ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र है ये। आपको तो याद रखना ही रखना है, अगर लॉग पढ़ रहे हैं तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। नंबर और आर्गुमेंट इज इक्वल्स टू बेस रेस्ट टू द पावर RHS, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है, ठीक है ना। अब आप पूछिए कि सर डोमेन क्या होता है, डोमेन तो पता ही नहीं है कि डोमेन होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ लॉगरिथम। अब बात करते हैं डोमेन ऑफ लॉग, डोमेन ऑफ
लॉग, ठीक है ना। डोमेन का लॉग क्या होता है? अब डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। जहां फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है ना, उसी को तो हम लोग बोलते हैं, एक एक्स का ऐसा सेट जहां फंक्शन डिफाइन हो उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि लॉग कब डिफाइन होता है, ये चीज हमें बताना है, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं लिख रहा हूँ 4 log a to the base b, log a to the base b, okay, to be defined, to be defined। कब ये डिफाइन होता है? जब ये जो नंबर है ना, नंबर ये पॉजिटिव हो, ये मींस a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। ए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और बी जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी हमारा लॉग जो है पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तीन चीज जब भी आप लॉग सॉल्व करें तो आप इन 3 चीजों को ध्यान में रख के सॉल्व करें, ठीक है। ए क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बी भी पॉजिटिव होना चाहिए और बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए शुड बी ग्रेटर देन 0, बी शुड बी ग्रेटर देन, बी शुड नॉट इक्वल टू 1। ओके, ये 3 कंडीशंस आपको याद रखना है। या आप इसको है ना, आप अलग तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात तो सेम ही है। ए जो है क्या है? ए जो है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। क्या हो गया? 0 टू इनफाइनाइट हो गया। और बी जो है, बी इज ग्रेटर देन 0 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। और जब आप इसका इंटरसेक्शन लीजिएगा तो आपको मिलेगा बी बिलोंग्स टू 0 टू 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। दोनों चीज सेम, आपको जो मर्जी, आप चाहे तो ये याद रखें, ये याद रखें, लेकिन हम तो सजेस्ट करें कि आप पहला वाला याद रखिए, ठीक है। कि ए जो है पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर और आर्गुमेंट जो होना चाहिए